So now we are solving the next part or next questions from question number 1. So here I am solving two parts of question number 1. This is the second part of question number 1 and this is the fourth part of question number 1. So first I am solving this part. So in this equation you have s minus t is equals to 3 and the second is s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6. Because this is in फ्रैक्शन फॉर्म तो ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो पहले आप इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है. तो पहले आप इक्वेशन 2 को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए. सो दिस इज s अपॉन 3 प्लस t by 2 is equals to 6. So here you can first you will take the LCM. So what is the LCM of 3 and 2? This is 6. So then it would be 2s plus 2 3 is 6 and 3 into t 3t is equals to 6. Now this 6 is dividing here, transpose करने पर multiply, तो ये कितना हो जाएगा? This is 2s plus 3t is equals to 36. So this is your equation 2 and this is your equation 1. Again the same pattern from equation 1, s minus t is equals to 3. तो यहां से हम इजीली s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, which is t plus 3. Getting? So because and you can take as a. Getting? Afterwards put s is equals to 3 plus t in equation 2. यहां पर आप इसको पुट करेंगे तो this is 2s plus s. s की वैल्यू हमारे पास है, this is 3 plus t plus 3t is equals to 36. Now 2 3s are 6 plus 2t plus 3t is equals to 36. Now this 6 is positive है, ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. and 3 plus 2 5. तो implies कितना आएगा? 5t is equals to 36 minus 6. तो फाइनली 5t is equals to कितना आएगा? 30. तो t is equals to 30 upon 5 which is 6. Reduce करेंगे इसको. Now you got the value of t and after finding the value of t you have to put this value in a. So now put t is equals to 6 in a in this equation. So here s is equals to 3 plus t के प्लेस पे कितना है? 6 because 5 6 are 30 हो गए. तो यहां से s कितना आ जाएगा? This is 9. Clear? तो hence s is equals to 9 और t is equals to 6. This is your answer. अगर फिर भी आपको डाउट है and you want to check your answers तो s और t की वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए. This is 9 and this is 6. 9 minus 6 this is 3. So it is verified. किसी भी एक इक्वेशन का आप वैल्यू को रखिए और चेक कर सकते हैं आराम से. In this case your LHS is equals to RHS. अगर आ जाता है that is your answer. Clear? Now I am solving the next part, fourth questions. So in this the both equations are in decimal form. 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. तो अक्सर मैंने ये देखा कि बच्चे डेसिमल में बड़ा ही प्रॉब्लम उनको क्रिएट होता है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. पहले आप इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. सो व्हाट इज द सिंपल फॉर्म? 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. डेसिमल यूज आपने पहले भी किया है. डेसिमल हटाने के बाद कितना आएगा नीचे? 10. इसका भी हटाएंगे तो कितना आएगा? 10. और इसका भी हटाएंगे तो कितना आएगा? 10. बिकॉज इस साइड में आपके पास दो फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा? 10. तो ऊपर कितना बचेगा? 2x plus 3y is equals to 30 upon 10. 10 से 10 कैंसिल. तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x plus 3y is equals to 30. And this one same, we are following the same way in equation number 2 which is given. This is 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. Again डेसिमल रिमूव करेंगे कितना आएगा? सॉरी 100 आएगा बिकॉज 0.2x लिखा हुआ है ना, नहीं 10 आएगा सॉरी. तो ये भी कितना आएगा? 10 और ये भी कितना आएगा? 10. अगेन एलसीएम कितना आएगा? 10. तो ये कितना आ जाएगा? 4x plus
5y is equals to 23 upon 10. 10 से 10 cancel. So finally you got the second equation, 4x plus 5y is equals to 23. Now what is the method? First of all find the value of any one variable in terms of the other. आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट का यूज कर लीजिए, चाहे आप सेकंड का. तो अगर हम फर्स्ट यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज सेड कि 2x plus 3y is equals to 13. तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो 2x is equals to कितना आ जाएगा, 13 minus 3y and then x is कितना आ जाएगा, 13 minus 3y upon 2. This is your a. Afterwards put x is equals to 13 minus 3y upon 2 in equation 2. यहाँ पर तो कितना होगा, 4, x की वैल्यू कितनी है, 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equals to 23. 2 से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 times easily, so this is 2, then 13 2s are 26 minus 2 3s are 6y and plus 5y is equals to 23. Now clearly observe this 26 is positive here, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, -6 और प्लस के 5, तो कितना बचेगा, -y and then 23 minus 26. तो finally you got -3. So this is -3, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो फाइनली y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. क्लियर? And now for x, now put y is equals to 3 in कहाँ पर, a, in this. सबसे इजी पार्ट है, आप यहाँ पे पुट कीजिए and you got the answer easily in minimum calculation. So this is x is equals to 13 minus 3 into 3 upon 2. तो finally 13 minus 3 3s are 9 upon 2. 13 minus 3 कितना होता है, 4 upon 2. This is 2, reduce करने पर. तो finally x कितना आ जाएगा, 2 और y कितना आ जाएगा, 3. So this is the way of answer or solution of substitution method. So I hope कि आपको समझ में आया होगा. इसको नोट डाउन कीजिए and everyone complete your question number 1 in your homework. Thank you. So hello, good morning everyone. So now I am solving the next part of question number 1. This is fifth part of question number 1. ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ because इसमें आप बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है. आपको प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, आपको प्रॉब्लम होती है डेसिमल वाले क्वेश्चन में, और आपको प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में. तो मैंने आपको पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट बताया, देन आई एम सोल्व डेसिमल पार्ट. क्लियर? एंड नाउ आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन. इसमें कहाँ है, इसमें अंडर रूट में आपकी वैल्यूज है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड देन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. सो हियर टू इक्वेशंस आर गिवन. तो नाउ हमें वही इसको क्या करना है, we are finding the value of x and y by using the substitution method. So first of all, because in these equations the equations are very simple, so from first, this is your first equation and this is your second equation. So from first, what is the first, 2 under root 2x plus under root 3y is equals to 0. तो मैथड क्या है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर. सो नाउ अगेन आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x. अब आप हर बार कहेंगे मैं x ही यूज कर रहा हूं, इस बार मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन टर्म्स ऑफ x. तो फ्रॉम हियर अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू दिस अंडर रूट 2x इज नेगेटिव, पॉजिटिव हियर, ट्रांसपोज करने पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव. तो 0 माइनस दिस वैल्यू, इसका मतलब कितना आएगा, माइनस अंडर रूट 2x. क्लियर? तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3. ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी a. क्लियर? सो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3 इन इक्वेशन 2. यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो दिस इज अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 इंटू y की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3. क्लियर? इज इक्वल्स टू 0. सो
अंडर रूट 3x as it is minus, दिस इज बिकॉज ये नेगेटिव साइन, जब इस नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट 8 इंटू रूट 2। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंट का रूल है, अगर आपको पता है, द रूल इज a raised to the power n into b raised to the power n is equals to a multiply b, the whole power is n। clear? if the base are different but the power is same, तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कहाँ चली जाती है, होल पर। बिकॉज अंडर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडर रूट हाफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2, दैट मीन्स अंडर रूट 16x अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ ऑब्जर्व इट, बिकॉज ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर? तो पहले उसको नॉर्मल देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले थोड़ा सा और। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 16 कितना होता है, दिस इज 4x और प्लस 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ टेक योर एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। दिस रूट 3 इज डिवाइडिंग हियर, ट्रांसपोज करने पर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो फाइनली कितना मिलेगा, 7 प्लस 4, ओ सॉरी 3 प्लस 4 7x इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, सिंपल 0। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.7 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 0। सो नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, पुट x is equals to 0 in a यहाँ पर, तो y is equals to minus under root 2 upon under root 3, x की प्लेस पर 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो आपके पास फाइनली x भी 0 और y भी 0। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, देखने में कॉम्प्लिकेटेड था बट इट इज नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। क्या रखना है आपको, पेशेंस रखना है एंड देन जस्ट आपको तो सिर्फ मेथड को फॉलो करना है, दैट्स इट। गेटिंग? इट्स वेरी सिंपल। Thank you. Now I am solving the next part, which is question number 3 in my next video. Now I am solving the next question number 3, first part, because question number 2 is very simple. In this question number 2, you have given two equations. This is 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24. First of all, solve them by substitution method. Find the value of x and y, and after the finding value of x and y, put these values in the given condition, y is equals to mx plus 3. When you are putting the value of x and y in this condition, you will get the value of m. M is here slope, make sure y is equals to mx plus c is a form of a straight line. m नहीं आ सकता है, कभी भी slope word भी आता है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, m को ही slope कहते हैं। Getting? So now third question, first part, which is the difference between the two number. अभी हमारे पास 2 नंबर लेने हैं हमें, तो हम क्या लेंगे, let first number, इसको मैं n1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, this is x, and second number इसको मैं n2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, this is y। क्यों लिया मैंने x और y? Because I am dealing in linear equation in 2 variables, तो मुझे इसके लिए 2 वेरिएबल ही चाहिए। So now हम कंडीशन क्या लेंगे कि अगेन कि x is greater than y, यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है, ग्रेटर है। कंडीशन बहुत जरूरी है इसमें लेनी, कभी भी नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी कि which number is greater than the another one। क्लियर? उससे क्या होगा कि आपको एक ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने पहले ही कंडीशन ली एंड यू हैव शोन दैट कि मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। सो x ग्रेटर देन y, सो नाउ रीड देम। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो केस 1 क्या कहता है, बिकॉज़ n1 ग्रेटर है आपका n1, ये n1 है आपका x और y क्या है आपका n2, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू कितना है 26, यानी फाइनली कितना लिखा है कि x माइनस y इज इक्वल्स टू 26, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और केस 2 क्या है आपका, केस 2 है कि द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब कौन सा नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स हो सकता है,
ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। सो यहाँ पर n1 जो है वो कितना है 3 टाइम्स ऑफ n2। तो फाइनली यहाँ से n1 कितना था x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड 3 इंटू वाई यानी कि 3y सिंपल। क्लियर। अब हम इसको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं बिकॉज सेकंड केस में आपको सिंपल कंडीशन गिवन है x इक्वल्स टू 3y। तो फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल्स टू 3y पुट इन फर्स्ट यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। तो फाइनली 3y माइनस y दिस इज 2y इज इक्वल्स टू 26। तो फाइनली y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 26/2 यानी कि कितना आ गया 13। एंड नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन सेकेंड। यहां पर पुट कर लीजिए सबसे इजी। तो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 13 3 39। तो फाइनली हेंस n1 इज इक्वल्स टू यानी फर्स्ट नंबर 39 और n2 कितना आएगा 13। So this is your answer. In this way you can solve all the question based on the two numbers easily. Thank you. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए समझ में। आई होप आपको आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक दो बार वीडियो को और देखिए और अगर फिर भी नहीं आता देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।